ઓકે, ખુશી વિધિ પ્રદીપ દાદા તમને ફોલો કરવું હોય તો કરજો, નહીં તો દીપક કાર્ય કરશે. ઓકે ખુશી. हाँ, जय सच्चिदानंद. हारे हो जी दादाजी. પ્રદીપ દાદા સાઉન્ડ નથી તમારો. દીપક ગાંધીજી, the sound is not there. પ્રદીપ ગાંધીજી તમારો સાઉન્ડ નથી. The audio is connected. Unmute. Unmute. Okay, now. ઓકે ખુશી વિધિ. हाँ, जय सच्चिदानंद. हारे हो जी दादाजी. आवाज नहीं आता प्रदीपानंद जी. પાછા આવો. દીપક ગાંધી, you go ahead. हारे हो जी दादाजी. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. हारे हो जी प्यारा जी. हारे हो जी प्यारा जी. सहारा विना बीज उगતું નથી. सहारा विना बीज उगतु નથી. हारे हो जी दादाजी. हारे हो जी दादाजी. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. પ્રદીપાનજી પાછા જઈને પાછા આવો. જગત કુસંગે જદુક. જગત કુસંગે જદુક. કેવળ સત્સંગે જસુખ. કેવળ સત્સંગે જસુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ. શમણે દર્શન થાતા સુખ. શમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી. હીરા મોતી મારાજી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હો જી દાદાજી. હારે હો જી દાદાજી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી. રોકો અતિક્રમણાજી. આત્મ રમણા વિના કાંઈ રૂ
રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના કાય રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હરે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય પ્રદીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકજી નથી સંભળાતું. અવાજ નથી આવતો તમારો. અમારો અવાજ આવે છે? તમારો અવાજ નથી આવતો. કોણ છે ત્યાં? સોમિલ છે? ના. ઓડિયો સેટિંગમાં જાઓ. માઇક્રોફોન છે ને એમાં સાઈડમાં એરો છે તે ક્લિક કરો. કર્યું? ક્લિક કર્યું? ટેસ્ટ માઇક છે, જુઓ તમે. સોમિલ માઇક્રોફોન બોલે છે તો અવાજ આવે છે, અંદર સિગ્નલ આવે છે? સોમિલ એ છે જ્યાં શું કરે છે? ઓડિયો સેટિંગમાં જા ને, પેલું માઇક્રોફોન એમાં પેલું બોલે છે તો ઇનપુટ લેવલ બતાડે છે. માઇક્રોફોન પ્રોપરલી સિલેક્ટ કરેલું છે પણ આ બોલે તો. ઓકે, ત્રિમત્ર બોલાય દીપક દાદા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, નમો લોય સવસાહનમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો વચન મુક્કારો, સવ પાવ પ્રણાસણો, સર્વપાપનાશનો, મંગલાણં ચ સર્વેષેમ, મંગલાનાં ચ સર્વેષાં, પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં વૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। विशाल डेली प्रेयर। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे धैर्य को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग ना छोड़ूंगा। कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और रहती आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है।
मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। मैं आगे हमेशा अपनी माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस समय मुझे अनंत मम्मी के साथ कैसा रहा आज? अच्छा रहा। ओके, नडिया, नडी दीदी, विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में, समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई ढंग से हो। परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। अच्छा नडिया, कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड। ओके, खुशी, अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके, आज तो होमवर्क था, किसके पास सेवा ली, किसके पास सेवा दी आपने? तो अच्छा, अभी बड़ी से स्टार्ट करें, मोटी बहन से स्टार्ट करेंगे आज। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी की सेवा की थी और हेता और मम्मी से सेवा ली थी। हेता से तो लिया तो बहुत अच्छा रहे, मम्मी से क्यों सेवा ली आपने? मम्मी ने खाना बनाया था तो। आपका टर्न नहीं था, एग्जाम है इसलिए आपका टर्न नहीं है? नहीं, शाम को मम्मी बनाती है। अच्छा अच्छा, ओके। हिता दीदी? जय सच्चिदानंद। मैंने भी मम्मी और हेचरी की सेवा की है और उन दोनों से ली भी। क्या मैंने सुना? उन दोनों की सेवा मैंने की है और उन दोनों से ली मोटी भी बहन है। की सेवा की आपने? हाँ। मैं अच्छा सुन रहा हूँ? ओके, वेरी गुड। अनन्या दीदी? कभी कभी गलती कर लेते हैं। अनन्या दीदी? हाँ, जय वेरी गुड। सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की हेल्प की थी और मम्मी की हेल्प ली थी। मम्मी की हेल्प क्यों लेते हैं? तो आपके एग्जाम चल रहा है इसलिए। ओके, समझ गया मैं। सूर्या दीदी? और वत्सल की रात बोलने का बंद कर दिया ना? हाँ, आज कुछ नहीं हुआ वत्सल के साथ, नहीं, क्योंकि हम मिले ही नहीं थे। मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने पूछा आप बंद कर दिया उसको बात करने के? ऑर्डर हाँ, देने आज हम मिले ही नहीं थे, अभी मिले हम। अरे अंदर से क्या डिसीजन क्या है आपका? कि वत्सल के साथ गलत माथाकूट नहीं करने की, उसे जो करना है वो करेगा, मुझे नहीं बोलना है उसके साथ। वेरी गुड। ओके, सूर्या दीदी? आज मैंने मम्मी को सेवा दी थी और सेवा भी ली थी मम्मी। आप मम्मी की सेवा क्यों लेती है? प्रतिभा जी? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड प्रतिभा जी। सूर्या दीदी, आप मम्मी से सेवा क्यों ली थी आपने? क्योंकि मैं नहाने गई थी और मैं टॉवल लेना भूल गई थी। क्या? मैं नहाने गई थी और फिर मैं टॉवल लेना भूल गई, तो फिर वही सेवा ली आपने? हाँ। खाना खुद बनाया? वो सोचो खाना भी कल एकदम लिस्ट कर बना के लेके आने का। क्या बात करते हैं टॉवल की से? और दूसरा कुछ किया है ना? मम्मी सारा दिन सो गई थी? हाँ, ओके। विधि दीदी, खुशी दीदी?
हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को सेवा दी थी और मम्मी से सेवा ली भी थी और पापा को सेवा की थी और खुशी की भी सेवा की थी। खुशी किधर के चली गई? हाँ वो उसकी फ्रेंड आई तो वो दूसरे फोन से ज्वाइन हो रही है। ओके खुशी दीदी बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा की थी और दीदी की सेवा की थी और मैंने आज सेवा मम्मी की ली थी। आप क्यों? आप तो बड़ी बन गई, अभी तो खाना नहीं पकाते हैं अभी? नहीं खाना नहीं पकाती। क्यों? मैं मम्मी को कहती हूँ पर मम्मी मना करती है। मम्मी को अच्छी तरह से आप नहीं बोलते हैं। ओके दीदी का क्या सेवा किया आपने? हाँ उनकी बुक्स मैंने जगह पर रख दी थी आज। ओह क्या बात है। ओके वेरी गुड। ओके आपके साथ नहीं, कौन है? लेकिन आपके लेकिन साथ कौन है? लेकिन दीदी ने अपनी जगह पे बुक्स नहीं रखी थी, उसका क्या? दैट्स अ पॉइंट। ठीक है ओके। ओके आपके साथ कौन है? हाँ मेरी फ्रेंड है नियति। नियति आपने क्या किया मम्मी के लिए? आज क्या किया आपने? मम्मी को नहीं बोलने का है। मम्मी बहुत बोलो, ये नियति को बोलने दो। हाँ वो कह रही है कि बर्तन घिसाए थे। आप क्यों बोलते हैं उसको? उसको जब बोलने दो। ओके दूसरा दीदी आपके साथ कौन है? जॉनसी नाम है उसका। मानसी आपने क्या किया मम्मी के लिए आज? जॉनसी। जॉनसी मम्मी को क्या हेल्प कराई? मैंने बर्तन घिसवाए उसने। ओह क्या बात है, वेरी गुड। ओके दीपक दादा। यस, कि सेवा का इम्पोर्टेंस क्या है? कोई इम्पोर्टेंस है कि सेवा क्यों करनी चाहिए? सेवा करेंगे तो सेवा मिलेगी आपको। और ये हमारा शरीर है ना, वो सेवा लेने के लिए है कि देने के लिए है? देने के लिए। हमें देने का भाव ही करने का है, डिसाइड करना क्या है, मुझे सेवा करनी है। तो उससे क्या होगा, आपको जो सेवा की जरूरत है ना वो अपने आप मिलती रहेगी। लेकिन आपने जो सेवा करने का भाव किया है ना, वो तो आप सेवा करेंगे और सेवा से हमारा अहंकार नरम होता है। अहंकार तो ऐसे आप लोगों का तो नरम ही है ना कि बहुत कड़क है? कड़क है। वो नाक पर नींबू रखते ऐसा है, ऐसा बोला जाता है ना, ऐसा बोला जाता है, पता है? टंडी दादा आपको पता है? नहीं हमको नहीं मालूम था। नाक पर नींबू रखते हैं, नींबू। कभी ट्राई किया है किसी ने? नहीं। वो साइंटिस्ट गीता दीदी से दीदी नहीं। वो फोर्स किधर जाएगा? नींबू रखेगा तो उधर ऐसा करके। हाँ वो जरा वेकेशन में वो सोचना पड़ेगा। नहीं दीदी 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 हाँ, और इधर रख के फोर्स कैसे बैलेंस कर सकता है? ओके चेन्नई हम भूल गया, आप लोग गुम हो गए थे। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा की थी और मम्मी की सेवा ली भी थी और पापा की भी ने आज सेवा की थी। तो आज पापा की झगड़ा नहीं आप? नहीं आज झगड़ा नहीं किया। ओके करिश्मा दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम 2 बार की थी, मैंने 10 टाइम्स की थी। आप क्या हेल्प करते हैं घर में? अभी तो एवरीडे हेल्प करता है। क्या किया? किसको सेवा दिया आपने? मम्मी को। मम्मी को। तो दीदी को? छोटी मम्मी को नहीं देती है? कल से छोटी मम्मी को सेवा करो। ओके
हाँ ओके, खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की सेवा नहीं की, पर पापा से और मम्मी से सेवा ली थी। क्यों? दीदी को मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा और मम्मी को दिया। पापा ने मुझे स्कूल से लाकर आप सेवा भाव कब हो गए? हाँ के प्रदीप दादा, दीपक दादा बोलने का है कि प्रदीप दादा को बोलने का सेवा? या जस्ट अ मिनट। तो ये सेवा का इम्पोर्टेंस समझना है, और आखिर की सेवा दादा की आज्ञा में रहना है, यानी उन्होंने जो सत साधन दिया उसको फॉलो करना है, उनके विज्ञान के अनुसार चलना है। तो उससे ये सेवा से हमारा व्यवहार के धक्के कम होते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और दादा की आज्ञा की सेवा में रहने से हमें मुक्ति के मार्ग पर जाते हैं, यानी हम मुक्त होते हैं। दोनों समझ में आया? हाँ ये दोनों सेवा जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर है ना, वो पूरा डेट है, यानी उधारी माल है। उधारी माल समझते हैं? हाँ लोगों का हमने उधार लिया है, इसीलिए ये शरीर को ये भाव ही रखेंगे ना कि मुझे सेवा करना है, मुझे रिटर्न कर देना है, तो आप व्यवहार से मुक्त हो जाएंगे। और तो और आपके व्यवहार में जो आपकी जरूरत पड़ेगी सेवा की, किसी की भी, वो अपने आप मिलती रहेगी। और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा, यानी उन्होंने जो सत साधन बताया है उनके विज्ञान के अनुसार चलेंगे हम, तो हमें मुक्ति मिलेगी। तो इसे क्या कहा पता है? दोनों हाथ में लड्डू मिलेगा आपको, तो अच्छा लगेगा। ये बात है। जय सच्चिदानंद। जैसे खुशी चिनाई, आपने फ्री टाइम में क्या किया? मैंने आज फ्री टाइम में दुकान गई थी, पापा बाहर गए थे तो। दुकान गई थी आप? हाँ दुकान से। ओके, कल फ्री टाइम में सेवा करने का। हाँ ओके, पापा को बोलने का दुकान नहीं जाने का, हमको सेवा करने की। और बड़ी बड़ी मम्मी की, छोटी मम्मी की और दादी की, सबकी सेवा करने की। हाँ ओके प्रदीप दादा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जैसे दादा भगवान की सोच कैसी थी, क्योंकि उस समय तो गाड़ी की, रिक्शा की व्यवस्था नहीं थी ज्यादा, तो वो घोड़ा गाड़ी में आते जाते थे, कोई एक गांव से दूसरी जगह पे जाना हो तो दादाजी भगवान कैसे सोचते थे कि ये जो घोड़ा गाड़ी वाला आदमी है उसको उस समय 1 आना 2 आना ऐसा कुछ किराया चलता था, तो वो तो दे देता था, दादा दे देते थे उनको। फिर दादा को विचार आता था कि ये इनका घर कैसे चलेगा, फिर ये आदमी घोड़े को क्या खिलाएगा। तो दादा जब भी वो घोड़ा गाड़ी में बैठते थे तभी वो घोड़ा गाड़ी वाले को जो उनको किराया देना है वो भी देते थे, और उनका घोड़े का खाने का पैसा अलग देते थे। आपको समझ में आया? हाँ और आप लोगों ने कई बार दादाजी की एक बात भी सुनी है कि वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा उनके काम करने के लिए एवर रेडी रहते थे, और खुद का काम कभी भी उनको नहीं दिखा बताएंगे, उसकी सेवा नहीं मांगेंगे, उसको टेंशन नहीं देंगे। ऐसी बात दादाजी उनको फ्रेंड्स से करते थे। तो मैं कहता हूँ कि हम मम्मी की सेवा क्यों करने की, मम्मी को हेल्प क्यों करने की? तो कि पहले हमें ये सोचना है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें थकान लगती है, हाँ हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट तो आती होगी ना। जैसे हाँ आप पढ़ाई करते हो तो भी आपको कभी ऐसा होता है कि चलो अभी 1 घंटा हो गया, अभी बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो मम्मी सुबह से शाम तक जितना भी घर संभालती है, जो भी काम करती है, गेस्ट को नाश्ता देती है, सब जो भी करती है, तो उनको थकान लगती होगी। हाँ लगती होगी। इसलिए दादा भगवान ने बताया
हमें दूसरे की सेवा दिल से करने का कभी भाव होगा, ताकि हमें पता चलेगा कि मुझे जो चीज, मुझे थकान लगती है, मुझे आराम की जरूरत है, मैं इतना पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ और मुझे मन में ऐसा विचार आता है, तो मम्मी पूरे दिन काम करती रहती है कुछ न कुछ, तो उनको कुछ तो होता होगा ना, कि नहीं होता होगा? होता तो उनको भी कैसे बोझ कम पड़े, उसको कैसे रेस्ट मिले और हमें उसमें से कुछ सीखे। समझे ना, सेवा का मतलब यही होता है। दादा बोला कि जब भी उनको जरूरत किसी को भी पड़ जावे तो वो अपने को बुलावे कि भाई अपने मम्मी आपको जरा बुलावे कि इधर आओ, पानी दो, अगर ये काम करो वो काम करो, वो सेवा नहीं है। हमें खुद को खुद ध्यान रखना होता है। मम्मी आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए मुझे जरा बताना, मैं आ जाऊंगी तुरंत या आ जाऊंगा। आप समझे? वो हमारा व्यवहार इस तरह से होगा तो बहुत अच्छी बात है। हमें ये जितनी भी चीज करनी है उसमें हमारी समझ, हमारी सोच जितनी परफेक्ट होगी तो उससे हमें भी सुख मिलेगा और सामने वाले को भी सुख मिलेगा। और उसमें बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ईगो की कोई जरूरत नहीं है। उसमें तो हमारा बस एक दूसरे का आत्मीय व्यवहार हो गया कि आपको कभी भी जरूरत है मुझे बता देना। आप समझे? मम्मी को बोल के रखते हो आप? कोई बोलते नहीं है। बोलो क्यों? हमारा जैसे दादा भगवान इनको फ्रेंड को बोल के रखते थे कि कभी भी मेरी जरूरत पड़ जाए तो आप मुझे बताना, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन मैं आपको कभी नहीं जगाऊंगा या कुछ मेरा काम सौंपूंगा नहीं। आप टेंशन मत लेना, मैं तो आपका फ्रेंड हूं ना। तो हम ऐसे मम्मी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आपको क्या लगता है? बोलना चाहिए। प्रिया तो ना बोलती है। हाँ बोलती हूँ। दादा भगवान में से तो हम कच्चे हैं, आपने बोलते हैं ना, दादा हम हैं कच्चे फिर भी दिल के हैं सच्चे। तो हमारा जो कच्चापन की हमें जहां जहां पता चल जावे कि ये चीज में कच्चापन है, तो फिर दादा की बातों में, सत्संग में से, कहीं ना कहीं पद में से ये हमारा कच्चापन को कैसे परफेक्ट करना है, उसमें से हमें गाइडलाइन मिलती है। वो दीपक आनंद जी साहब बताएंगे इससे कितना बड़ा फायदा होता है। अभी टाइम तो भी काम करो। कल बोलेंगे प्रदीप दादा। और काम ओके, बोलो, ओके। काम बोलो। हमारा काम दिल से होना चाहिए। मैं मम्मी को हेल्प करता हूँ, करती हूँ या कुछ भी, उसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। और जब मेरी ड्यूटी पे मुझे काम सौंपता है तो उसमें खुशी होनी चाहिए, तो हमारा प्रोग्रेस होता है और दादाजी भी खुश हो जाते हैं। ठीक है साहब, विदाउट एक्सपेक्टेशन। ओके, चलो दीपक आनंद जी साहब आप बताना जो बताना है। कल ये सेवा कल लेंगे। आज क्विकली दीपक आनंद जी, निमेशान जी, क्विकली हम पढ़ लेंगे, बाद में निमेशान जी को सुनेंगे आप। ओके खुशी दीदी, एक मिनट। खुशी